एंटायर गैम्बेट हैज चेंज। आपने अगर देखा होगा तो रशिया यूक्रेन का वन ऑफ द एग्जांपल, दैट्स मोस्ट ऑफ द बेस्ट एग्जांपल व्हिच यू कैन कोड। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द लास्ट हिस्ट्रीज ऑल्सो। आप 2017 में उसको पता था कि आने वाले समय में इस तरह से पूरा वॉरफेयर चेंज होगा और उसने अपने आप को इक्विप्ड कर लिया था। ईरान, बाकी मशीन सारा काम कर रहा है, मशीन भी गलती कर सकता है। आप ये बता दीजिए चाइना का 41% जो टोटल ऑल AI की जो पेटेंट है उसमें 41% सिर्फ चाइना का है। ब्रदर, वन थिंग जस्ट वांटेड टू टेल यू कि ये कि जो मिथ बना रखा है ना कि AI आया, क्वांटम आया, हमारी नौकरी चली गई, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। चैट GPT से आपने भी पूछा, उन भाई साहब ने भी पूछा, आपका डेटा उठा के उनको देगा, उनका डेटा इनको देगा, वो प्ले कर रहा है एंड यू आर एंजॉयिंग। सो लास्ट माइल डिपेंडेंसी विल बी ऑलवेज ऑन द ह्यूमन ब्रेन्स। November 2024 saw unprecedented events in the Middle East. Attacks were carried out against the operatives of Hezbollah in Lebanon by the known enemy Israel, but the way the attacks were carried out was very different from what had been done earlier. The attacks were carried out through an obsolete technology of the 90s, through the pagers, which were right in the pockets of the Hezbollah operatives. Thousands of them were neutralized in one go. This particular event was a watershed in many ways, and it has broken the myth that hybrid warfare is only limited to theory. It is indeed a reality today. To discuss about this particular issue, to discuss about the role of technology in warfare, to discuss about the role of emerging areas in the warfare, we have with us today Dr. Nishkant Ojha. Dr. Nishkant Ojha is a renowned expert in cybersecurity, aerospace, and national security issues. He's currently heading a study group of the defense forces on various important issues related to national security. He has also been previously a trainer for the defense forces for India, as well as writes regularly columns and editorials in various newspapers and magazines on issues related to national security and technology. Welcome, Dr. Ojha. Thank you. We are really looking forward to having a great, insightful conversation with you. I'll start from where I began. The 2024 attacks that happened in Lebanon kind of gives us a peek into how the warfare is shaping up today, how technology has become very important in the area of warfare. If you could explain to our viewers, what do they understand by hybrid warfare, and what are the kind of implications that it has on national security for a country like India? See, you rightly pointed out that in the whole gambit or the whole concept of the warfare has changed. No more conventional. Now it's more of a, you can say, a hybrid warfare. So when we are talking about the hybrid war and the recent example which you are quoting, I mean, this is not one of the example. There have been in history many such example, and in fact, Mossad was the main who took this, who cultivated and who executed this operation. That was a beautiful example of the hybrid warfare. Means that how the human intelligence and how the machine, they worked very smartly with each other, and then they executed this thing. I mean, this is something which we are taking when we are talking about the hybrid warfare. So a communication tool was used as a weapon, or he was used and converted as a weapon by passing the information from the human end, and then got it executive as a bomb or some kind of a weapon which was used as a destruction for the enemies. So entire gambit has changed. आपने अगर देखा होगा तो रशिया यूक्रेन का one of the example, that's most of the best example which you can quote. I mean, I'm talking about from the last histories also, World War I और II. तो उसके बाद भी अगर आप देखते हैं तो ये सबसे एकदम प्राइम और बेस्ट एग्जाम्पल है विच कोट करता है. माइंड यू, टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज ऑफ माई एक्सपीरियंस विच आई टेल, कि कन्वेंशनल वॉर की जो एक इम्पॉर्टेंस है दैट हैज़ गॉट डिक्रीज्ड. नाउ द वॉर विल बी ऑन द टू फेस, ऑन द एयर एंड अंडर वाटर. वी कैनॉट रूल आउट द कन्वेंशनल वॉर. कन्वेंशनल वॉर precise war जिसको बोलते हैं, that is there, but they are fully dependent on these two things. Means, and that's the beauty we are talking about the theaterization और ये सारी चीज़ें अभी जो हम लोग की बात हो रही है कि जॉइंट कैसे किया जाए इनको सारा. लेकिन जहाँ हम बात करते हैं कि अगर आप हाइब्रिड वॉरफेयर की बात कर रहे हैं,
C2 कमांड सेंटर. आई एम टॉकिंग अबाउट अ सोल्जर हु इज़ जस्ट लाइक अ मशीन. एक सोल्जर जो सिर्फ मूव नहीं करता, एक्ट नहीं करता और यू कैन से थिंक नहीं करता, वो डिसीजन भी लेता है साथ में. So that's the beauty of the machine we are talking about. We are talking about the war of algorithms कैसे काम करेंगे. और जियो ये जिस तरह से यूक्रेन और रशिया का एग्जाम्पल है, उसके बाद इज़राइल का सबसे बड़ा जो उन्होंने ये एग्जीक्यूट किया है, ऑपरेशनलाइज किया हमास के अगेंस्ट में, क्योंकि मैं तो उस सब्जेक्ट पे काफ़ी काम किया हूँ. तो जो उन्होंने टेक्नोलॉजी यूज़ की थी, लेवेंडर और गॉस्पेल, दो एक सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाया था. And those software was basically used first to gather and fetch the information को लिया, उसको क्लीन किया, उसको सारा एकदम पैकेज किया और उसको इस लायक बना दिया कि नाउ इट कैन टर्न इनटू अ काइंड ऑफ अ मीनिंगफुल एक्शन. उसको उन्होंने मशीन के साथ इंटीग्रेट किया. मशीन को नाम दिया अ बर्ड इन द बॉक्स, कि ये एक बॉक्स है, बॉक्स खुलेगा, बर्ड उड़ेगा, बर्ड मीन्स ड्रोन्स, उड़ेगा, एनवायरनमेंट में जाएगा, आइडेंटिफाई करेगा, इंगेज करेगा, उसको स्कैन करेगा सारे पैरामीटर्स की, वेदर इट इज़ माय राइट टारगेट और इट इज़ समथिंग. और उसके बाद 4 से 6 सेकंड का वो पॉज देगा ह्यूमन को कि आप मुझे बताओ, मेरे हिसाब से तो ये है टारगेट विथ ऑल द पैरामीटर्स, वेदर आई शुड एग्जीक्यूट हिम और वेदर आई शुड वेट ऑन टेक योर कमांड. वंस द ह्यूमन इंटरवेंशन इज देयर, वो अपना कमांड देता है, द बर्ड डिस्ट्रॉयज, come back, sit in the box and rest in peace. So that's something we are talking about, all those things we are. और जिस तरह से एरोस्पेस और जिस तरह से अंडर वाटर की सिचुएशंस हैं, मतलब दिस इज नेक्स्ट लेवल वी आर टॉकिंग अबाउट. आज के समय में देखिए, अगर हम बात करते हैं, कोई भी वॉरफेयर हो, आप कोई भी नाम ले लीजिए, ABCD, लेकिन सबकी डिपेंडेंसी इंफॉर्मेशन पे है. किस तरीके से आप इंफॉर्मेशन को निकालते हैं, फेच करते हैं, पुल करते हैं, पुश करते हैं और उसके बाद उसको यूज़ करते हैं, दैट्स अ होल ब्यूटी अबाउट. और उसी मॉडस ऑपरेंडीज और उस कॉन्सेप्ट्स को हमने अलग अलग नाम दिया, AI दिया, क्रिप्टो दिया, क्वांटम दिया, ये सारी चीज़ें. भाई इंटेलिजेंस हम पहले भी निकालते थे, लेकिन उस समय गुप्तचर होते थे, वो जाते थे. आप शिवाजी की उसमें देख लीजिए, उनके यहाँ सबसे ज़्यादा गुप्तचर थे. मतलब इवन किंग जाते थे और वहाँ पब्लिक के साथ मिलते थे और इन्फॉर्मेशन गैदर करते थे, उसके बाद लाके उसको फिर एग्जीक्यूशन किया जाता. तो कौटिल्य हैज टॉक्ड अबाउट स्पाइस. एब्सोल्युटली. तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये सारी चीज़ें आज से 50 साल पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं, बस उसको हमने थोड़ा सा कंसाइज कर दिया और उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर चले गए. मतलब मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि आप पिरामिड है, पिरामिड को उल्टा कर दीजिए, तो ऊपर से ब्रॉड है और इसको नैरो 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 करते हुए चले गए, तो डिसीजन हमारा फास्ट हो गया, हमारी ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं, सारा सब कुछ. तो दैट्स वी आर टॉकिंग अबाउट द वॉरफेयर. और ऐसी भी कोई नई चीज़ नहीं है कि मतलब इन्होंने जो एक्टिविटीज़ करी कि पेजर को एज एन एक्सप्लोजिव यूज़ किया. आपको शायद ये पता होगा कि 2005 में US ने डेल्टा फोर्स बनाई थी, जो कि उन्होंने इराक में इन्वेड करने के लिए, वो पूरा टर्मिनेटर का कॉन्सेप्ट था. तो आप ये देखिए कि 2005 में वो फोर्सेस तैयार थी, अब हम बात कर रहे हैं. तो इट इज़ नथिंग, एवरीथिंग इज देयर. एनवायरनमेंट इज चेंजिंग, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, सो दैट द वॉरफेयर कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो चेंजिंग. अब आयरन डोम की बात करते हैं, ABC, मतलब इट्स नथिंग न्यू, इट्स ऑलरेडी एवरीथिंग इज देयर. बट क्यों मशीन को एक्सपोज हो रहा है नया इन्वायरमेंट, तो मशीन अपने आप को लर्न कर रही है सारी चीज़ें. और अब तो समय ऐसा आने वाला है कि मशीन बोलेगी अब मुझे बताओ भी नहीं, मैं अपने आप ही लर्न कर लूँगी. तो पहले तो टीचर होता था ना, सिखाता था, मशीन से वी आर स्मार्ट इनफ. So would I be wrong in saying that in 21st century the wars will actually be fought between the machines and not human beings, but human beings will just be taking some important decisions, but primarily the machine is driving. 19.83 मिलियन $US का बजट है ऑटोनोमस वेपन का, US का, जो कि डिफेंस में यूज़ होगा. तो मेरे हिसाब से अगर ऑटोनोमस वेपन की आप बात कर रहे हो, हैवली डिप्लॉयड है और ऑलरेडी कंट्रीज, 2017 का ये आपको डेटास देता हूँ, 2017 में करीब 15 या 16 कंट्रीज थी जो कि एयर, यू कैन से व्हाट यू शुड से, एयर वॉरफेयर में अपने आप को इक्विप कर लिया था. इवन पाकिस्तान, चाइना, अजरबैजान, आर्मीनिया, रशिया,
लेकिन दुख की ये बात है कि इंडिया नहीं था उस समय 2017 के उसमें। इंडिया ने एक्टिविटी काफ़ी स्लो बाद में किया, बट नेवरदलेस ऐसी कोई वो नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें हम समय के साथ चेंज होते हैं, कुछ समय हमें चेंज करवा देता है। लेकिन आज के समय में अगर हम बात करते हैं तो वी आर एट पार एंड वी कैन कॉम्पीट ऑन द एयर एंड अंडर वाटर एंड इवन ऑन द ग्राउंड लेवल ऑल्सो। बट आई एम टॉकिंग अबाउट द कंट्री। एक छोटी कंट्री, आप 2017 में उसको पता था कि आने वाले समय में इस तरह से पूरा वॉरफेयर चेंज होगा, और उसने अपने आप को इक्विप्ड कर लिया था। ईरान, इराक, सारी कंट्रीज। और इंडिया में जो इसका एक रिवोल्यूशन आया, जो एक कॉन्सेप्ट इसको ड्राइव किया गया, वो बेसिकली 2020 और 21 के बाद किया गया। सो दैट इज समथिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। तो आने वाला समय जो है बहुत ही भयानक है, और ऑटोनोमस वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इन सब की बातें हो रही हैं। लेकिन हाँ, उसके साथ, क्योंकि हर कंट्री अपने आप को सेव करना चाह रही है, इक्विप्ड करना चाह रही है। जिस तरह से जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस बन रही हैं, ब्लॉक्स बन रहे हैं, आप देखिए एशियान बन रहा है, ब्रिक्स बन रहा है, अब मिडिल ईस्ट में नाटो बनने जा रहा है। तो कई चीज़ें हैं। अब जब अगर इस तरह से चीज़ें होंगी तो ऑटोमेटिकली कंट्री को अपने आप को इक्विप्ड करना ही पड़ेगा टू द प्रॉस एंड कॉन्स होने के लिए। तो मार्केट इज़ देयर। और टेक्नोलॉजी का मैं हमेशा ये बताता हूँ कि टेक्नोलॉजी पे हमेशा R&D वर्क करते रहना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, 2012 में मैंने पोस्ट डॉक करी थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग पे एंड नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज पे। 2012 डेनमार्क से किया था मैंने। 2000 मेरे ख्याल से 22 या 23 में यहाँ पॉपअप होना चालू हुआ, AI, क्वांटम, क्रिप्टो। नहीं, पहले बात नहीं कर रहे थे। सो गैप है। तो वी नीड टू गेट इम्यून टू द टेक्नोलॉजी। हमारे प्रोफेसर ने तो बहुत सही सिंपल से एक मैथमेटिकल दिया था कि भैया इधर यू अडॉप्ट द टेक्नोलॉजी और अदरवाइज टेक्नोलॉजी विल अडॉप्ट यू। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेट कि सर मैं आप ये बताइए, आपने मुझे सब चीज़ बता दी, क्वांटम बता दिया, क्रिप्टो बता दिया, आपने मुझे सेमीकंडक्टर के बारे में बता दिया, आपने मुझे हेल्प, आई एम कंफ्यूज। तो बोले कि देयर इज नन ऑफ वन टेक्नोलॉजी विच कैन सफाइज ऑल योर रिक्वायरमेंट। तो बोले आपको तो ये पोजीशन है कि आप एक गैलेक्सी में खड़े हुए हो और सारी टेक्नोलॉजीज आपके सर के अगर बर घूम रही हैं। आपका इक्विपमेंट वो होना चाहिए कि राइट टेक्नोलॉजी को राइट प्लेस पे, राइट पर्पस के लिए, एट राइट कॉस्ट के लिए एंड एट राइट प्रोपोर्शन यूज़ करने की इक्विपमेंट होनी चाहिए। वो that is you have to learn. So the technology can only take you to a certain extent. Absolutely. Ultimately, you have to build the skill to be able to. ह्यूमन इंटेलिजेंस के पीछे लास्ट माइल डिपेंडेंसी तो ह्यूमन इंट पे रहेगी। मैंने आपको एक लेवेंडर वाला बताया कि हाउ मच द सॉफ्टवेयर इज स्मार्ट, लेकिन लास्ट में वो फिर भी बोल रहा है कि मुझे बताओ मैं शुड आई प्रोसीड अदरवाइज, और ह्यूमन बीइंग उसको देता है। मैंने हालांकि इजरायली कमांडर से एक बार पूछा भी था, मैंने बोला आप हाउ मच टाइम, बोले कि हम 6 सेकेंड का हमारा इंटरवेंशन होता है मशीन में, बस बाकी मशीन सारा काम कर रहा है, पिक कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है, सैनिटाइज कर रहा है, उसको पूरा पैरामीटर्स पे इवेलुएट कर रहा है और डिस्ट्रॉय कर रहा है। हम सिर्फ 5-6 सेकेंड का हमने ऑप्शन दे रखा है कि मशीन भी गलती कर सकता है, तो एक बार हम क्रॉस चेक करते हैं उसको। लेकिन बोले जिस रफ्तार से मशीन अपने आप को ट्रेन करता चला जा रहा है, बोले कि हो सकता है कि हमारी ज़रूरत ही ना पड़े। Does that also mean there are certain ethical dimensions associated with the use of technology and machines in warfare? एब्सोल्युटली। अब अगर आप देखते हैं जो जिस तरह से सिचुएशंस बन रही है, आप हर टेक्नोलॉजीज का प्लस और माइनस होता है। सी डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव बोथ साइड्स इज देयर। नाउ इफ यू आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी ऑन अ डिस्ट्रक्टिव साइड, ऑब्वियसली इट विल गो इन अ डिफरेंट डायमेंशन। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की हम बात कर रहे हैं। अब मुझे कोई एक बता रहा था, मुझे बोल रहा था कि सर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में मशीन जो ऑटोमेटिकली अपने आप को एकदम इक्विप कर लेगा एंड ही विल स्टार्ट यूजिंग बाय इट्स ओन, और 300 राउंड 400 राउंड वो विद इन फ्रैक्शंस ऑफ 60 सेकेंड चलाएगा। तो हमने बोला कोई नई चीज़ तो नहीं है, ये पहले भी थी। जो अमेरिकन जो वर्ल्ड वॉर 3 हुआ था, तो उसमें बेसिकली हमने एक साइंटिस्ट थे रिचर्ड गैटलिंग थे, तो उन्होंने एक गन बनाई थी जो कि रेडार इक्विप्ड थी उस समय, और वो 300 राउंड 60 सेकेंड में फायर करता था। तो टेक्नोलॉजी
is there, but now it is getting more and more refined. सिंपल सा एग्जांपल देते, मुझे बोलते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और मुझे याद है मैं जब बचपन में था तो दूरदर्शन पे एक शो आता था स्टार ट्रेक, और उसमें मैं देखता था कि कैप्टन मैकॉय आता है, वो पंच करता है, सामने आ जाता है, वो बात करता है। उस समय हमारे लिए फैंटेसी था। बाद में स्काइप, सारा वीसी, वही सारा चीज़ है, सैटेलाइट फोन, सो थिंग्स आर देयर, वी आर जस्ट यूजिंग। एथिकल इश्यूज आएंगे। सी व्हेन यू लीव एंड मशीन स्टार्ट डोमिनेटिंग यू, अगर अब इन्वायरमेंट है, मशीन खुद लर्न कर रहा है, अब इन्वायरमेंट से मशीन अपने आप को लर्न कर रहा है, लेकिन वो इन्वायरमेंट किस तरह का इन्वायरमेंट है, वेदर इट इज़ अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट, नेगेटिव इन्वायरमेंट, जो इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रहा है वो इन्फॉर्मेशन किस तरह की, वेदर इट्स अ क्लीन इन्फॉर्मेशन, बायस्ड इन्फॉर्मेशन, और किस, सो दैट इज समथिंग विच वी नीड टू टेक केयर ऑफ। जैसे अभी अगर ग्लोबल डेटा प्रोटेक्शन में GDPR जो सिटीजन कंट्रीज ने अपने सारा किया, उन्होंने दैट्स वन ऑफ द कॉल दे हैव टेकन कि भैया अगर आप हमारे एरियाज में आ रहे हो तो सारा डेटा हम सिंथेसाइज करेंगे अपने पैरामीटर्स पे, आपके पैरामीटर में वो ठीक है, क्लीन है, बट आई हैव टू इवेलुएट ऑन माई, बिकॉज इट चेंजेस। इन्वायरमेंट जब जब डेटा एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में ट्रैवल करता है तो उसकी पूरी कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाती है। माइट बी इट विल बी यूजफुल फॉर यू, बट इट इज नथिंग यूजफुल फॉर मी इन माई इन्वायरमेंट। सो दैट इज समथिंग विच वी नीड। एक सबसे बड़ी ये चीज़ है कि इंडिया में अगर हम बात करें, जिस हिसाब से अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर अब हाइब्रिड वॉरफेयर की हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज़ की बात कर रहे हैं, थिएटराइजेशन की बात कर रहे हैं, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को कैसे इंटीग्रेट किया जाए इन मेडिकल, रिफाइनरीज, रेलवेज, एवरीथिंग। सो ये सारी चीज़ें हो तो रही हैं, लेकिन ये सारी इनकी डिपेंडेंसी तो इन्फॉर्मेशन पे है। अब मैं और आप बात कर रहे हैं, हो सकता है कि हमारे मोबाइल और हमारे स्मार्टफोन से कम मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डेटा इस समय एक्सचेंज हो रहे हैं यहाँ पर। स्टेटस को पकड़ना, डेटा को क्लीन करना, डेटा को यूज़ करना, नाउ दैट इज समथिंग विच वी नीड टू वर्क ऑन दैट। सो आई थिंक वी नीड टू हैव अ क्लियर कट आइडियाज़ कि किस तरह से हमें अपने डेटा पॉलिसीज़ होनी चाहिए, डेटा सॉवर्जिनिटीज़ को किस तरह से प्रोटेक्ट करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है, मैंने देखा कि जो इंडिया में सबसे बड़ी एक call for the day है, that is cyber law, which is missing. The Data Protection Act is still not in force, and cyber law you need to put it unless, अब हमें अगर SOP ही नहीं पता है, हमारे पास फ्रेमवर्क ही नहीं है कुछ, आप कितनी भी मशीनें लगा दीजिए, फाइटर उड़ेगा, हैक होगा, जाना उसको A लोकेशन में B लोकेशन में डाइवर्ट हो जाएगा। So you can cultivate, play with that. So you need to have a very clear cut SOPs. You need to have a very clear-cut framework, whether it is for artificial intelligence, whether you are using the quantum, whether you are using the crypto, whether you are using A, B, C, whatever is there. The good thing is that about the trial services, I can tell you कि उन्होंने अपना SOP पूरा बना दिया है artificial intelligence का, और framework भी बन के तैयार है, but that's for a limited thing. But for the private sector or for we need to have. अब अगर आप देखें, मुझसे किसी ने पूछा कि आप ये बताइए कि इंडिया की साइबर कैपेसिटी और साइबर कैपेबिलिटी को आप जरा 2 लाइन में बताइए। तो हमने बोला भैया अगर मैं साइबर कैपेबिलिटी की बात करता हूँ तो इंडिया में आज के समय में एक दिन में, जो मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट अ मंथ बिफोर जो मेरे पास फिगर आए थे, 48 to 57,000 हिट्स एक दिन में होते हैं, अटैक्स। That is humongous. And that only on the civilians. डिफेंस को छोड़ दो, डिफेंस में तो बम्बार्ड पूरे दिन होता रहता है, दे वांट टू गेट एवरीथिंग, सो दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। नाउ दोस मेनी हिट्स आर हैपनिंग, सो यू नो दैट हाउ मच वनरेबल यू आर। फिर ये हुआ, जब हमने उसकी एनालिसिस करी तो मैंने ये देखा कि सबसे ज़्यादा जो साइबर फ्रॉड्स और सारे साइबर वनरेबिलिटीज़ हुई, इंक्रीज़ करी, दैट इज़ ऑन द फाइनेंशियल फ्रॉड्स। अब फाइनेंशियल फ्रॉड्स में अगर आप देखना चाहो तो आप देखिए सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड हुए हैं, ये तो आप छोड़ दीजिए, जो सर्कल्स घूमते हैं कि आपको मिसगाइड करके आपसे OTP ले लिया। द मेजर अटैक्स विच हैपेंड वाज ऑन द कोऑपरेटिव बैंक्स। अब आप बात कर रहे हैं 21st सेंचुरी की, यू आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी, यू आर टॉकिंग अबाउट AI। भाई आपका फ्रेमवर्क तो होना चाहिए। अगर आज आप पिथौरागढ़ या कोई पहाड़ पे चले जाएं तो वहाँ कोऑपरेटिव बैंक में एक सर्वर, एक राउटर लटका हुआ मिलता है,
तो और एक फिगर अगर मैं बात करूं तो मुझे याद है 2022 में मैंने इस पे काम किया था, 90,600 कोऑपरेटिव बैंक्स थे, माइक्रो एंड स्मॉल सारे मिला के, और 1403 कुछ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स थे। और जो मेजर अटैक्स हुए थे, वन ऑफ द मेजर अटैक्स कॉस्मोस में हुआ था, जो मिलियंस उड़ा के चला गया पैसा। तो आप मुझे तो अगर आप पूछे एज एन साइबर एक्सपर्ट, और मैंने अपने प्रोफेसर से पूछा भी था कि सर साइबर को कैसे, बोले व्हाट, क्या तुम उल्टी सीधी बात कर रहे हो, यू आर ऑलरेडी हैक्ड। आप, ये नौबत नहीं आ रही कि कोई अटैक करेगा, आप ऑलरेडी अटैक के अंडर हो, यू आर कॉम्प्रोमाइज्ड। हाउ मच यू सेव योरसेल्फ, दैट्स अ कॉल ऑफ योर डे। आपका सारा इंफॉर्मेशन इट्स ओपन एयर। कैसे बचा के अपने आप को निकलते हो, कैसे अलर्ट रहते हो, कैसे ड्यू डिलिजेंस करते हो, दैट इज योर कॉल। You have to be very cautious when you are in this vulnerable world, where everything is compromised, unknowingly or knowingly. आपको पता भी नहीं है, you are told, you are, आप करिए, आप अभी आप हम बात कर रहे हैं, अगर कहीं स्मार्टफोन रखा होगा और उसका माइक ऑन होगा तो हमारी सारी परसेप्शन हमारे पैटर्न्स को रीड कर रहा होगा, बिहेवियर सारा बात को रीड कर रहा होगा। That is why a lot of us get Instagram and Facebook ads the moment we talk about certain that things. we are talking about the beauty of the data multiply from the data, so that's you cannot skip now, you have to live with that. ये नहीं बोल सकते कि हम इसको बंद कर देंगे, इसको बंद कर देंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। मतलब आज एक चीज़ बंद करेंगे, मैं एक VPN लगाऊंगा, 2 VPN लगाऊंगा, क्रॉस कर जाऊंगा, उसको नहीं होगा, बाहर से होस्टिंग लेगा, एक प्राइवेट टनल बना लूंगा अपना। देयर इज हेल ऑफ द वे टू डू इट, बट you need to create a very robust system within the Indian soil so that you are protected. और आज के समय में आप एग्जाम्पल्स देख लीजिए, बांग्लादेश इशू देख लीजिए, नेपाल देख लीजिए। सो व्हाट आर दिस? सोल्जर तो एक स्टेप बाहर भी नहीं निकला और पूरी की पूरी कंट्री सबोटाज हो गई। दैट्स द गेम चेंजर थिंग्स ऑफ दिस डिजिटल वर्ल्ड वी आर टॉकिंग अबाउट। नैरेटिव्स कैसे ड्रॉ करना है, प्लस में करना है, माइनस में करना है, थिंग्स चेंज्ड। वी आर ह्यूमन बीइंग। अगर मैं उठा के आपके ऊपर बम्बार्ड करना चालू करूंगा एक नेगेटिव नैरेटिव, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम एवरीथिंग यू विल स्टार्ट बिलीविंग, इट्स ह्यूमन नेचर। आपका सबकॉन्शियस माइंड भी एकदम बिलीव करने लगेगा कि नहीं हो सकता, यही है सही। So that brings me to a point. I was reading an article written by you on how the success of the armed forces in Operation Sindoor on ground was not able to translate in terms of the perception that was built around. Two things happened. I would like to say that there is no question which has to be raised on our defense forces. We are capable. We have the capability. I'm not talking about the machines, I'm not talking about, but as an Indian armored force, we are talking about the Air Force, we are talking about Navy, we are talking about the Territorial Army, we are good. We can nail down anything. And now since we have been doing a lot of things, the technologies had been embedded and which was beautifully used in Operation Sindoor. So your getting the datas and then doing the predictive modelings and everything, you should not think like that कि वो बस फाइटर उड़ाया और ले जाके मार दिया, ऐसा नहीं होता। उस फाइटर को उड़ने में और वहाँ जाने पे और टारगेट को शूट करने में कम से कम कुछ 2 से 3 हज़ार लोग काम करते हैं उसके पीछे। There is a whole lot of whole team, and सारा डेटास को कंसाइज किया जाता है, उसकी मॉडलिंग्स की जाती है, मैथमेटिकल मॉडलिंग्स की जाती है, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग्स की जाती है, उसके हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं कि 1 ऑप्शन फेल होगा तो 2 पे जाएगा, 3 तो बहुत अच्छे से यूज़ हुआ। बट इट कुड हैव बीन बेस्ट यूज्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। ये तो इसका प्लस पॉइंट ऑपरेशनल जहाँ पर हमने यूज़ किया। सेकेंड, अगर हम बात करते हैं इसका डिस्ट्रक्टिव, अब अगर हमारे घर के लोग ही नहीं सही हैं तो हम क्या कर सकते हैं? उधर आर्मी और एयरफोर्स लड़ रही है और इधर आप उसका नैरेटिव्स ड्रॉ कर रहे हैं कि नहीं उन्होंने 5 फाइटर मार दिया, नहीं हमारे 6 उड़ गए, ये हो गए। अब बाबा तुम थोड़ी थे वहाँ पर वॉरफुट पे, हाउ यू नो what has happened and what you have done कि you have literally, the main people are these people who basically are they should be punished for the treasons। कि आपने जिस तरह से एक्टिविटीज करी उससे आपने सारी इंफॉर्मेशन दुश्मनों को दे दी, हम तो नहीं दे रहे थे और आर्मी कभी करता भी नहीं है।
लेकिन जिस तरह से ये पूरा एक सोशल मीडिया कैंपेन नेगेटिव नैरेटिव्स में ड्रॉ हुआ, एंड इट वाज लुकिंग लाइक दैट वी आर नॉट फाइटिंग विद पाकिस्तान, आवर पाकिस्तान इज हियर inside our soil. So that is something which basically hurts also, and which demoralize the forces also. But nevertheless, so this is something which needs to be taken care, and the organization like CERTIN, the organization and NCCC and many other organizations are there who should work together. So Dr. Ojha, when you talk about building the capability, and since you are in a very unique position because you have been a practitioner and you also understand the academia side as well, how can the industry and the academia be brought together, especially in cutting edge technologies and using it for building our capabilities in national security? See, the thing is that कि मुझे याद है मेरी मदर खुद टीचर हैं, और चाणक्य को आपने देखा ही है। हमारे यहाँ एकेडमिया प्लेज अ वेरी वाइटल रोल in totality, in everything, whether it is enhancing of the capability, enhancing of the country की economic condition को करना, academia को cannot be ruled out. But the thing is that कि ये जो एक कॉम्बो बनाना है हमें, academia और जो private partnership, इनको जो क्लब लाना, एक गैप है जो मैंने देखा कि इंस्टीट्यूशंस का एक अपना एक प्रिस्क्राइब मतलब फ्रेमवर्क है, मतलब एक जिसको बोलते हैं एक एरिया उन्होंने निर्धारित कर रखा है, उससे आगे वो नहीं सोचते। क्योंकि ऐसा नहीं कि वो नहीं सोचना चाहते या वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, वो एक्सपोज नहीं है उस इन्वायरमेंट के लिए। उस एक्सपोज जो इन्वायरमेंट के लिए नहीं है, उस इन्वायरमेंट को एक्सपोज करने के लिए आपको प्राइवेट कंपनीज की ज़रूरत पड़ेगी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स अपनी लेकर आएंगे। देन यू हैव टू सिट टुगेदर एंड देन यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली। अभी 90% जो मान लीजिए मैंने एक ये बोला कि मुझे एक टेक्नोलॉजी है, उसके लिए एक कॉन्सेप्ट नोट या एक मुझे आप बना के दीजिए। अब उसको तो पता नहीं है एकेडमिया को। एकेडमिया तो अपने हिसाब से एक वास्ट एक पूरे वेग मतलब 360 डिग्री पे वो अपना करेगा कवर और थ्योरेटिकल करेगा बेसिकली। लेकिन अगर आप बात करते हैं, अब वो बना के कुछ देता है, लेकिन जब हम उसको ले आते हैं और यूज़ करते हैं तो वो एकदम इन्वायरमेंट में पैच ही नहीं हो पाता, क्योंकि इन्वायरमेंट की कॉल और उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट और उसकी नीड एकदम डिफरेंट है। So how have China or US or European countries solved this problem? How have they got these two together जो हम कर सकते हैं यहाँ पर? सबसे बड़ी चीज़ जो उन्होंने राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, जो उन्होंने एक उनकी बहुत बड़ी सिंपल है, वहाँ जो जॉब प्रोफाइलिंग है वेरी क्लियर है। एकेडमिया में भी ऐसे कुछ दिग्गज हैं जिनको दे हैव द गॉट एक्यूमेन एंड दोज थिंग, दे नीड टू बी आइडेंटिफाइड एंड नीड टू बी प्लेस्ड एट द राइट प्लेस। और एकेडमिया और जो डिफेंस फोर्सेज है या क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, उनको क्लोजली काम करना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर जहाँ आपने गैप बना दिया, अब मैं कई बार जाता हूँ, मेरे पास डिस्कशन होता है कि सर मुझे याद है एक बार हमने एक कॉन्सेप्ट नोट तैयार किया था वॉइस फॉरेंसिक के ऊपर। अब हमने तो प्रोफेसर ने बना दिया, वॉइस फॉरेंसिक बन के तैयार है, डब्बा भी तैयार है, सब कुछ तैयार है, और हमने ओपन सोर्सेज डेटा भी निकाल लिया, उसको टेस्ट भी कर लिया, एक्यूरेसी लेवल 14% 15% जा रहा था। अब हमने डिफेंस को बोला, हमने पुलिस डिपार्टमेंट को बोला कि भाई आप थोड़ा डेटा दे दो जिससे मशीन थोड़ा इन्वायरमेंट में एक्सपोज्ड हो जाए और अपने आप को ट्रेन कर ले। क्योंकि अभी वो लेमैन है, बच्चा है मशीन, जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसी तरह मशीन पड़ा हुआ है, उसको पता है सारी चीज़ें कि अगर कोई आएगा तो मेरे को हाथ ऐसे करना है, लेकिन जिस रफ्तार से करना वो तो नहीं कर पा रहा है। तो फीडबैक लूप नहीं बनेगा, वो सीखेगा। अब ऑर्गेनाइजेशन से ये आ जाता है, नहीं सर ये हमारा क्लासिफाइड डेटा है, हम नहीं देंगे आपको। तो मैंने उनको ये सलाह दी कि ठीक है, आपका क्लासिफाइड डेटा, आप अपना डेटा अपने पास ही रखिए, आप खुद यूज़ करो और आप मशीन को ले आओ अपने यहाँ पर और उसको उस इन्वायरमेंट में ट्रेन करो। लेकिन देयर इज सम गैप विच आई हैव फेल्ट दैट थिंग्स आर नॉट मूविंग एज इट शुड हैव बीन मूव्ड। अब हो क्या रहा है, ये जो जितना ये क्योस मचा हुआ है, अनक्लैरिटी है, फॉग है, उसका फ़ायदा ये जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड होता है वो उठाते हैं। अब वो क्या है कि एक सोल्यूशन बनाया,
सोल्यूशन उन्होंने बना के दे दिया, अब वो सोल्यूशन ला के मुझे दे दिया, अब मुझे ये नहीं पता कि सोल्यूशन को यूज़ कैसे करना है, कहाँ पर यूज़ करना है, और वो मेरी सफाइस रिक्वायरमेंट को कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। एक और सबसे बड़ा कैच होता है, मैंने ये देखा है कि जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है वो थोड़ा उसकी क्लैरिटी और होने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम बड़ा वेग देते हैं। From the forces and from the industry. इंडस्ट्री, एवरीबडी। अब मेरे से कई आते हैं, स्टार्टअप्स आते हैं कि सर हमने ये ड्रोन बना लिया। अरे बाबा, तुम्हारे उस ड्रोन की जरूरत ही नहीं है मुझे। तुम्हें पता है इन्वायरमेंट में वहाँ पर किस तरह का ड्रोन चाहिए? मुझे मिनीचर ड्रोन चाहिए, मुझे एक्सप्लोजिव ड्रोन चाहिए, मुझे ISR ड्रोन चाहिए, मुझे कॉम्पैक्ट ड्रोन चाहिए, मुझे हैव चाहिए, हाई एल्टीट्यूड सैटेलाइट ड्रोन्स चाहिए। माई रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट। तो that gap is there which I'm also not able to understand कि why we are not able to do। गवर्नमेंट की तरफ से पूरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ रही है, आईडेक्स है, सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो फ्लोट करती है, ओपन चैलेंजेस भी आते हैं, OCs भी आते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि why we are not at the level of that, the top superpower। You've also mentioned about how India needs to move from assembly to design when it comes to chip technology, and given the importance of semiconductor and chip technology in today's That's a very interesting topic, and in fact मैंने तो अभी एक आपको I just want to quote some figure on that also। This is something which the audience and people should know। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ जो आपने स्ट्रैटेजी की, उसकी सेमीकंडक्टर्स और चिप वॉरफेयर की अगर हम बात कर रहे हैं, इंडिया की जो पोजीशन है वो तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन इन टोटलिटी अगर हम बात करते हैं तो इसमें बहुत क्लियर डेटा है। मैंने अपना ताइवान पे मैंने काम भी किया था, तो 92% ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट एडवांस चिप्स कम फ्रॉम ताइवान, TSMC उनका है। और आज के समय में अगर हम बात करते हैं तो आने वाले समय में, जैसे बोलते थे ना कि इंफॉर्मेशन ऑयल है, तो अब तो मेरे को ये लग रहा है कि चिप ऑयल हो गया। अगर चिप में आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, और सेमीकंडक्टर इज वन ऑफ द कोर एलिमेंट ऑफ दैट, देन यू आर फिनिश्ड। क्योंकि जिस हिसाब से डेटा मल्टीप्लाई कर रहा है, every time it is multiplying, I'm totally on the basic principle, golden rule of the data is data multiplies from the data comes from the data। वो अभी मतलब 1 है 110 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, you will never know how much is giving the rebirths to the data। और उसको प्रोसेस करना and use it, because every data is important for me। So when we are talking about the chip, so when we are talking about India, लेट्स टेक अबाउट द इंटायर इकोसिस्टम। तो बेसिकली अगर हम सेमीकंडक्टर और चिप्स में बात करते हैं तो इसमें 5 जो मैंने हाईलाइट्स किए थे पॉइंट्स। एक डिज़ाइन है, आपका डिज़ाइनिंग ऑफ द चिप्स, फिर फैब्रिकेशन है, टेस्टिंग है, पैकेजिंग है, एंड देन cyber security, basically how to secure that chip। These are some of the things which are there। Now when we are talking about say India imports nearly around $26 billion worth of semiconductor। This is a figure of 2025। That's a big number। Okay, even chips for national security, telecom and defense come from abroad। There is a lack of the technological sovereignty we are talking about। No indigenous fabrication is there। IP, no UAV, extreme ultraviolet, we are talking about the lithography। No advanced material based is here। And I have seen that when I was talking to Taiwan, I was talking to ABC countries for doing a collaboration in the semiconductor with India, they are a little bit resistant। So global firms hesitate to transfer tech because of the IPR concerns and low economics of scale। I'm giving you the facts, the studies which we have done। I'm not giving in detail whatever they, and something about the export controls also। So these are some of the things which we are talking about। 3, I'm not giving much more on that। So what I just wanted to convey to the audience and to the stakeholders in the government also, and to the institutions like IITs and everybody, we should focus on matured and specialty nodes like 20 nm to 90 mm in totality।
So that will cover the power electronics, automotive chips, and defense grade ICs offers a valuable market entry. And market is humongous here. Market is, you cannot calculate the market. And then we have to accelerate the OST concept. Means basically you are talking about the assembling, we are talking about the testing and the packaging. Easier to scale and require less capital. Then we should work more on the developing of the raw material. So we have to work basically for the developing of the raw material. We have to work strategic alliance, like geopolitical situation. I am not here to talk about these things. But भैया अगर समय चेंज हो रहा है, कंट्री का इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, तो आपको भी अपना इंटरेस्ट चेंज करना पड़ेगा. तो अगर यूएस आपके साथ नहीं है, आपके साथ we have a severe problem with China, we have severe problem with many other countries. So we should try to focus on the countries which are allied with us and they want to work closely with. Taiwan is one of the country. Recently Japan ने काफ़ी interest show किया. And when we are talking about the some of the countries from I don't know how much they bid, but countries from the EU also they proposed. Switzerland also proposed. So they told that we want to work with semiconductor and that we should work hard on those aspects. अब बैठ जाना और ये सोचना कि यूएस ने ऐसा कर दिया, तो that's not the call for the day. We have to overcome. We have to come from this. And then we need to create from your forum we need to create a semiconductor skill corridor. That is missing. And what would that include? So your universities, your industries, your fab process requirement, every needs to be embedded and needs to be bundled together. Then you will see the beauty, how it will come. अभी क्या हो रहा है, हमारे यहाँ भेड़ चाल चलने लगती है. AI आया, every Tom and Jerry started talking about AI. मतलब पता नहीं है कि AI क्या. मैं तो आपको बोलता हूँ कि मैं फ्लोर्स में जाता हूँ, फोरम्स में जाता हूँ, मुझे आज तक AI की सही डेफिनेशन नहीं मिल पाई. मैं कभी कंफ्यूज जाता हूँ, ये एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में बात कर रहा है कि AI के बारे में बात कर रहा है कि क्रिप्टो में चला गया कि क्वांटम में चला, कहाँ घूम रहा है, आई डोंट. सो दैट नीड्स टू बी टेकन केयर. वी नीड टू. अब अगर सेमीकंडक्टर में आ गया तो भैया आपको सही ऑर्गेनाइजेशंस को देखना पड़ेगा. नहीं यहाँ पर आपके अभी देखिएगा 100 ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हो जाएंगी कि हम सेमीकंडक्टर में काम करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट हैज गिवन अ ह्यूज बजट. AI मिशन चालू हुआ, अब उसमें सारे आ गए. साइबर किसी तरह से हुआ. तो वी नीड टू हैव अ वेरी क्लियर कट ऑडिट मैकेनिज्म ऑल्सो. आर यू कैपेबल ऑफ डूइंग दैट? डू यू हैव एक्सपर्टाइज or you just coming as a cash cow to us? We need to ask the right questions to the... So that needs to be taken care. Even institution I'm talking about. I'm not naming an institution, but ऐसा नहीं है कि सारी institution top की 10 है, उनकी सारी capabilities है. I have seen. I know the mindset. So you need to identify who are the right organization, right people and for the right things. Then only things will give you the outcome. Otherwise, we'll keep on hanging like a pendulum here and there. And the most important thing which I wanted to suggest from your floor is that we should have a stable policy and governance continuity. So, whether we are talking about the semiconductor, whether we are talking about the AI, whether we are talking about the cyber security, whether we are talking about the quantum, anything. So, semiconductor investment needs a decadal consistency, not yearly. I mean, थोड़ा सा time आपको देना पड़ेगा उनको. ये नहीं कि आपने दे दिया और 3 महीने बाद पूछे क्या हो गया. 5 से 10 साल का horizon. You have to accept that. So मेरे हिसाब से India's semiconductor dream is not impossible, but the current optimism is overstated. That is very interesting. And one thing मैं बोलता हूँ, while अब मैं जो semiconductors की leader हैं उनकी परिभाषा बताता हूँ. While Taiwan has institutional memories, China has a state aggression, US has a technological depth, India still has a policy ambition without execution architecture. It's nothing to be taken as a hard. We don't need to feel bad about it, but look at it in a positive. Absolutely. So you need to, unless we start building a sustained pipelines of labs, supplier talents, technologies right, semiconductor push. So otherwise we'll be still at the illusion of the progress.
So what I'm just trying to do, this is very crucial, because whether we are talking about hybrid warfare, we're talking about the autonomous warfare, we are talking about the anything, you're talking about next generation technology, everything comes and rests here only. The mother is there only, the heart is there only. So we need to build that. Abhi Tata has started, good. I think Foxconn, they have also started a plant facilities there. But we need to work hard. We need to invite more. And I'm not why we are only targeting these US and these countries. We are a lot of small countries also. I remember 2021 Switzerland government proposed me, we want to work closely with Indian government on the semiconductors. I gave the proposal, but I don't know, because it's not an opportunity we have jumped on. So there are a lot of things which we need to see and take it forward. And I'm telling you that things have changed. So India is changed, but now we have to change much more at fast. So we can compete with these the peoples who are there, or the countries who are there. Or I'm not saying anything. We have got a defense PSU. They are working very well enough. I used to frequently visit these PSUs. They have got good capabilities, good R&D mindset also. But we need to bring these private companies and private people, startup close to them. और वो एक gap खत्म करना पड़ेगा. Only then the things will work. You also talked about talent supply, and that brings me to a very crucial point from the perspective of our audience as well. A lot of youngsters in tier 1 or tier 2 cities who may want to make a career in these areas, whether it is cyber technology or AI, or for that matter even semiconductor technology. What would you suggest could be a pathway for them? How can they explore making a career in? Brother, one thing just wanted to tell you कि ये जो myth बना रखा है ना कि AI आया, quantum आया, हमारी नौकरी चली गई, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है. वो आपको employment और generate कर रहा है. You need to understand the factuality. We should not work on the Google and get his opinion. Things are changing. As of now, cyber security की मैं बताता हूँ कि by the end of what we have, estimation, and it is the survey has already been done. By the end of somewhere around 27 and 28, there will be 3 million jobs which will be created for the cyber security personals. So, एक cyber का है, उसके बाद AI का है. Then you have, because we need coders also, बाबा. अब तो आने वाला समय तो ऐसा है कि आपको सुनाई देगा कि टैंक ने टैंक को नहीं मारा, या बटालियन ने बटालियन को अटैक नहीं किया. वो बोलेगा UAV 72 shot UAV 74, swarm of drones. So now, how when we are talking about these things, all things goes to the codings, algorithms. तो जब ये कोडिंग आएगी, एल्गोरिथम्स बनाएंगे, तो वी नीड पीपल लाइक दैट. मशीन कैन नॉट जनरेट द एल्गोरिथम. मशीन कैन गिव यू अ कॉन्सेप्ट, अ काइंड ऑफ अ वे ऑफ फॉरवर्ड फॉर द एल्गोरिथम. लेकिन अब आप एक मेरा डिस्कशन हो रहा था, बड़ा सिंपल था. वो बोला कि सर हमें कोडर्स की भी जरूरत नहीं है. वी डोंट नीड कोडर्स ऑल्सो, बिकॉज AI आ गया. AI में मतलब फैक्चुअली उसने सही बोला. आप कमांड दीजिए, आप बोलिए कि मुझे ये आउटपुट चाहिए, मेरा ये है, वो सारा आपको बना के दे देगा. लेकिन एक एग्जांपल मैंने लास्ट आपको दिया था, कि आपके सेशन में भी दिया था. ये जो ऑटोमेटिक जो क्लाउड से जितनी डिक्शनरी बनी हुई है, वहाँ से जो हम फेच करके सारी चीज़ें बनाते हैं. एक कैंडिडेट था, वो इंटरव्यू के लिए जा रहा था, तो उसने चैट GPT को बोला कि आई एम अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड दिस इज़ माई जॉब प्रोफाइल, दिस इज़ द कंपनी, काइंडली सेंड मी 7 क्वेश्चंस विच कैन बी आस्क्ड विद आंसर. चैट GPT विद फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड दे दिया सारा. मोहतरमा ने उसको अच्छे से रट उट लिया, वहाँ गई, और जब उनका इंटरेक्शन चालू हुआ इंटरव्यूअर से, उसने वही 7 क्वेश्चन इनसे मैडम से पूछे. ओके, तो लॉजिक क्या है? द बॉटलनेक इज दैट कि चैट GPT से आपने भी पूछा, उन भाई साहब ने भी पूछा, उन्होंने आपका डेटा उठा के वहाँ दिया, वहाँ का डेटा आपको दे दिया. So interaction is not between human beings, but
So this is how the disaster of the chat GPT will happen in few days. आपका डेटा उठा के उनको देगा, उनका डेटा इनको देगा, वो प्ले कर रहा है and you are enjoying. What he is doing? He is playing with the APIs ना. आप जब देखते हैं तो यही बोलते हैं ना कि मैंने यहाँ से उठाया से वो आया, उसके बाद तो कुछ नहीं करते, उसको कस्टमाइज करके दे देता है. लेकिन आई एम सेइंग यू दैट हाउ डिजास्टर दिस इज. अब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में मैं तो ये बोलने वाला हूँ कि इट शुड बी बैंड इन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन. नो बडी शुड बी अलाउड टू यूज द चैट जीपीटीज, बिकॉज वो तो अब अपना, मुझे तो ऐसा दिखने को दिखता है वो अपनी फाइल की नोटशीट भी उसमें डाल देते हैं. वो स्कैन कर लेता है, उसको रीड करके वो अपने हिसाब से नई नोटशीट बना देता है. A lot of notes in the government are being prepared through ChatGPT. So that's something. So now the next phase which is coming, that's a war of algorithm which will happen. The algorithm will fight with the algorithms. So that we need people, na? So last mile dependency will be always on the human brains and there will be massive job opportunity. आपको मैंने AI का बता दिया कि जॉब मार्केट क्या है, ऑटोनोमस वेपन्स का बना दिया, ये सारी चीज़ें, लेकिन चलाएगा कौन इनको? तो आपको मशीन तो ऐसा नहीं है कि आपने उसको ट्रेन कर दिया उसके बाद बोलेगा कि नहीं मैं ट्रेंड हो गया अब तो तुम चलो. ही नीड्स ट्रेनिंग एवरी डे, ही नीड्स टू लर्न एवरी डे, एवरी फ्रैक्शंस. So contrary to the popular perception that the AI is going to take away our jobs, in fact there is a huge opportunity. Huge opportunity. I have given you the cyber security. Cyber security का क्योंकि cyber security is an entire gambit in which AI is also there, quantum is also there, crypto is there, सारे उसके elements हैं. तो मैंने आपको बता दी इतनी जॉब तो अभी एकदम रखी हुई है. अभी अभी सॉक्स आ जाएंगे, नॉक्स हो जाएंगे, सिम्स आते हैं, सबके लिए ऑपरेशन चाहिए, सर्टिफिकेशन आपको करना है, उसके बाद आप करिए. थिंग्स आर चेंजिंग. तो जॉब स्कैरसिटी नहीं होगी, हाँ, लेकिन स्किल्ड जॉब की ज़रूरत पड़ेगी. क्योंकि जो आप बेसिक काम करते तो मशीन बोल रहा है कि अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं ट्रेंड हूँ इस काम में, अब तो तुम वो बताओ मुझे जो मैं नहीं जानता. तो दैट यू नीड टू टीच हिम, दैट यू हैव टू इंजेक्ट द न्यू एल्गोरिथम्स कोर्स एंड एवरीथिंग. यू हैव टू चेंज, यू हैव टू डाइवर्सिफाई द माइंड सेट ऑफ द एल्गोरिथम फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट. So that's something which we needs to do. So next game is about the algorithm C होगा पूरा war of algorithms है. This was very insightful, Dr. Roja. Thank you so much for taking out time and आपने जितनी सहजता से बहुत सारे complicated topics को explain किया हमारी audience के लिए, we are really thankful and we hope that the audience has learnt a lot from this interaction and जो बहुत सारे myth they have been shattered as a result of the light that you have thrown upon these topics. So we again thank you so much for your time and we hope that we can have more time with you in future and talk specifically about certain areas which would be useful for our audience. बस simple logic है सी, ये job वाला जो है ना, you have to, अगर if you want to hold the tail you have to hold it by teeth only ना. Right. ये ऐसे बना रहेगा, ये कभी नहीं होगा. दिस इज ऑल मिथ विच इज गोइंग ऑन. हाँ, आई टोल्ड यू वन थिंग विल हैपन, स्किल्ड, देयर विल बी एन अपॉर्चुनिटी. Thank you so much. Thank you so much for attending this particular session and we are really thankful to Dr. Roja for sparing the time. I hope the interaction that went with Dr. Roja was enlightening for many of you and continue to be subscribed to our channel and we will ensure that we will keep bringing such conversations in future as well with experts in various areas of technology and future emerging areas. Thank you.